નમસ્કાર યોગ પ્રેમીઓ, બધા આનંદમાં હશો, સુખ શાંતિમય જીવન વ્યતીત કરતા હશો. તમને બધાને મળી અને ઘણો જ આનંદ થઈ રહ્યો છે. એવું લાગે છે કે ખરેખર આ ટેકનોલોજીના યુગમાં ક્યાંય દુનિયા એકબીજાથી દૂર નથી. એટલું બધું સરળતાથી આપણે એકબીજાને મળી શકીએ છીએ, એકબીજાના વિચારોને આપલે કરી શકીએ છીએ અને જ્ઞાનોનું આદાન પ્રદાન કરી શકીએ છીએ. ખરેખર રિયલી કળિયુગના અમુક જે આ આવિષ્કાર છે, માણસને સ્નેહ કરવા માટે, જ્ઞાનનું આદાન પ્રદાન કરવા માટે અતિ આવશ્યક છે. કદાચ બની શકે કે વર્ષો પહેલા પણ આ જ વસ્તુ અવેલેબલ હોય. જેમ કે મહાભારતમાં સંજયની પાસે આ જ્ઞાન હતું, દૂરદર્શન, દૂરશ્રવણ, અને કળિયુગના અને ત્રેતા યુગના અને દ્વાપર યુગના અને બધાના અંતમાં જેમ કે આ બધું લુપ્ત થયું, ફરીથી પાછું ઉજાગર થયું. એવી જ રીતે આ કળિયુગનું સરસ ચરણ ચાલી રહ્યું છે અને બની શકે કે એની અંદર આ બધી ટેકનોલોજીનો ફાયદો આપણને મળતો હોય તો જેણે જેણે આ શોધ કરી છે એને પણ આપણે આભારી છીએ. આપણે એના તમે પ્રયત્નપૂર્વક યોગને આગળ વધાર્યો હશે, એના તમને ધીરે 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 ફાયદા દેખાવાનું શરૂ થઈ ગયું હશે. એનું કારણ છે કે આપણે 1 એપ્રિલથી શરૂ કર્યું હતું, આજે 25 દિવસ થયા. જે લોકોએ ઈમાનદારીથી, બિલકુલ ઈમાનદારીથી ધીરે 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 પ્રેક્ટિસ કરી હશે, એમને પોતાના શરીરની અંદર, પોતાના મન મસ્તિષ્કની અંદર, ચિત્ત આકાશની અંદર કંઈક ફેરફાર લાગ્યા હશે. માનું છું કે થોડું વચ્ચે છૂટી પણ ગયું હશે, પણ જે લોકોએ ખરેખર કડી મહેનત કરી હશે એને એના ફળ મળ્યા જ હશે એવું માનું છું. અને ધારો કે જો તમને એના ફળ મળ્યા હોય તો જરૂરથી શેર કરજો. તકલીફ પડી હોય તો પણ શેર કરજો, અને કંઈક પ્રાપ્ત થયું હોય તો બીજાને આપશો પણ ખરા, રેકમેન્ડ બી કરજો. આ જ બધા વિડીયોઝ હું યુટ્યુબ પર પણ શેર કરું છું, તો એને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો. તમારા વ્યૂઝ જરૂર લખીને મને મોકલશો તો મને પણ ખબર પડે કે ના, કંઈક મારામાં બી કમી છે જ. કારણ કે હું એક સાધક જ છું, સિદ્ધ નથી. તમે પણ સાધક છો, હું પણ સાધક છું. આપણે બધા એકબીજાનો હાથ પકડી ધીરે 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 આગળ વધતા વધતા મુક્તિના માર્ગ ઉપર આગળ વધીશું. 25 થવા આવી છે. પ્રાર્થનાથી શરૂ કરીશું, એના બાજુ પર મૂકી દઈશું. પદ્માસન, અર્ધ પદ્માસન, વજ્રાસન, સિદ્ધાસન. એક પગમાં મૂકશો અર્ધ પદ્માસન, 2 પગ મૂકીશું પૂર્ણ પદ્માસન. મેરુદંડ બિલકુલ સીધો રાખીશું, પ્રણામ મુદ્રા. ગહેરી આંખો બંધ, ગહેરો શ્વાસ લઈને ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરા. ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखते हुए प्रणव मंत्र का जाप करेंगे 5 बार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। गहरी सांस लेते हुए
भ्रमरी प्राणायाम के लिए दोनों अंगुष्ठ को कान के अग्रभाग में दबाते हुए भ्रमरी प्राणायाम करेंगे 5 बार। आंखें संपूर्ण बंद रखेंगे। पूरे शरीर के अंदर जो स्पंदन हुए हैं ओमकार के और भ्रमरी प्राणायाम के, उसको महसूस करेंगे शांत भाव से। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊर्जा का आवाहन करेंगे। ऊर्जा को आंखों पर प्रस्थापित करते हुए आंखों पर संपुट बनाएंगे। संपुट बनाने के बाद
बारीक बारीक प्रकाश के किरणों के अंदर ही आंखें खोलेंगे। ऊर्जा को विशुद्ध चक्र पर प्रस्थापित करेंगे। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रमोद शाहीवाला का नमस्कार, प्रणाम। आशा रखता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह, बहुत ईमानदारी से, बहुत कड़ी मेहनत करके अपने आप को तैयार किया होगा। उसके फलस्वरूप आपको सुख शांति प्रिय प्रदान हुई होगी। तो चलते हैं सूक्ष्मयान के लिए। दोनों पैरों को खोल देंगे। पैरों की अंगुलियों से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राउंड शेप में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर को साइड में ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करेंगे। इसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, हाथों से पकड़ते हुए। इसको यहां से हाथों से करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपने देखा होगा कि जहां पर जॉइंट आता है वहीं पर कचरा फंसता है। किसी भी पाइपलाइन में आप देखो, जहां पर जोड़ है वहीं पर तोड़ है। तो आपको ये पोर्शन में दर्द नहीं होगा, यहां कचरा फंसेगा, यहां कचरा फंसेगा, या अंगुलियों में कचरा फंसेगा। जितने आपके जॉइंट्स है वहां वहां आपको सूक्ष्मयान करना है। तो घुटने को नाक पर छुआएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए चलेंगे। बटरफ्लाई। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हुए। देखो, ये सूक्ष्मयान थोड़ा सा वार्म अप जैसा भी है और उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे जैसे आप थोड़ा सा नीचे से बैंड से शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे करने में कितना फायदे हैं। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, दोनों हाथों को ऐसे बंद करते हुए पैरों के। 1 स्लोली 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 आप जितना कर सकते हो, पूरा नीचे जाना है आपका, यहां नीचे तक पूरा। यहां से आगे से दबाओ थोड़ा चाहिए तो। हाँ, ये आपको 500 टाइम्स करना है। हम मानते हैं कि आप 25-50 हार्डली करेंगे, मगर फिर भी करेंगे तो ही पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 देखो, आधी मिनट के अंदर 50 हो गए। देखा आपने? तो धीरे 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 जैसे आप बढ़ोगे आगे,
तो 50, 100, 200, 500 खेलते खेलते 2, 4, 5 मिनट का सवाल है, आप करेंगे तो बहुत ही फायदे में रहेंगे। ये योगा जो मैं करा रहा हूं आपको, ये स्पेशल सीनियर सिटीजन के लिए है, आफ्टर 40 टू अप टू 80। इसलिए मैं स्लोली धीरे धीरे बारीकाई से उसके अंदर आपको ले जा रहा हूं। आपको ये महसूस होगा धीरे धीरे कि जब आपका शरीर शिथिल होना शुरू होता है तो पूरे शरीर के अंदर एक जकड़न सी महसूस होती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इतनी कम होती रहती है कि आप उठा के ऐसे नहीं ले सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, गिर जाओगे तो हड्डियां टूट जाएगी। तो ये सब सूक्ष्मयान करने से आपकी हड्डियां कभी नहीं टूटेगी। तो आज एक बहुत दिल की बात अभी आ रही है, वो भी आपको बताने जाऊंगा मैं। तो पहले शुरू करते हैं सूक्ष्मयान में। अपने पद्मासन अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। अब आएंगे हम अग्निसार की प्रक्रिया में। अग्निसार, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखते हुए कमर में से आपको झुकना है। झुकने के बाद हाथों पर थोड़ा सा वजन ले लेना है और बाह्य कुंभक के अंदर ये जो काम करना है आपको, बाह्य कुंभक के अंदर। पहले आपके मेरे वीडियो देखे होंगे, उसमें आपकी समझ में आ गया होगा कि ये पूरक क्या है, रेचक क्या है, अंतर कुंभक क्या है, बाह्य कुंभक क्या है। तो ये प्रक्रिया आपको बाह्य कुंभक में करनी है। पूरी सांस बाहर निकालते हुए पूरा पेट को खाली करने के बाद आपको बेली बटन को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करना है। एक सांस के अंदर आप 5 बार करें, 7 बार करें, 10 बार करें, बहुत अच्छी बात है। टारगेट हमारा एक सांस के अंदर 50 बार का है। तो आपको मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखते हुए कमर में से झुकना है। जब आपको सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, सीधे हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, फिर सांस को बाहर निकाल लीजिए। ये आपको प्रक्रिया जो है गैस, अपचा, एसिडिटी, कभी भी बदहजमी, पेट के तमाम प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाने में 100% का कारगर है, 100%। क्योंकि आपका एक जठर है और जठर के नीचे आपको जठराग्नि है, जो प्रदीप्त होने से आपके अन्न को अच्छी तरह रस में तब्दील कर देता है और उसके बाद उस रसों से पूरे शरीर का पोषण बनता है। जैसे आपने प्रेशर कुकर के अंदर कुछ अनाज डाल दिया, चावल डाल दिए और नीचे से ठीक से आग नहीं लगाई है, तो वो चावल पकेंगे नहीं ढंग से, तैयार भी नहीं होंगे। तो ये जठर, ये आपका जो है होजरी, उसको आप एक प्रेशर कुकर समझ लीजिए। आपने यहां से खाना डाला, यहां तक तो आ गया। उसके बाद क्या है, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, तो आपको उस प्रदीप्त करनी पड़ेगी उस आग को, जिसको जठराग्नि कहते हैं। तो जठराग्नि इसीलिए उसका नाम रखा है अग्निसार। अग्नि को प्रदीप्त करता है बॉडी में। तो आपको ये सोच समझ के बिल्कुल सीखने के बाद आपको देखिए, बाह्य कुंभक, बाहर सांस पूरी निकाल ली, बाहर सांस को रोक ली और उसके बाद बेली बटन को जब आपको सांस लेने की आवश्यकता पड़ी, सीधे हो जाइए, फिर सांस लीजिए, फिर गहरी सांस बाहर निकालते हुए पूरा एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी छाती बाहर निकालने का, बाह्य कुंभक करने के बाद इसको आपको अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करना है। अब आप एक सांस में 5-10 बार, जितनी बार कर सकते हो, ये अभी मायना नहीं रखती है कि आप 5 मरतबा कर सकते हो या 15 बार कर सकते हो, मगर करना जरूरी है। वैसे कम से कम ये 5 आवर्तन सुबह में, 5 आवर्तन दोपहर को, 5 आवर्तन शाम को, 5 आवर्तन रात को।
5-5 बार करेंगे तो एटलीस्ट इट्स ए क्वेश्चन ऑफ हार्डली 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। मगर ये 2 मिनट आपको निकालनी पड़ेगी। आपको इतना याद रखना है कि जब भी मैं खाना खाता हूं उसके पहले 1 मिनट कर लेता हूं। कुछ भी खाना खाने से पहले आप कर लो। बस कितनी देर लगी? 1 या 2 सांस, कम से कम 5 सांस, 30 सेकंड में हार्डली हो जाएगा आपका। तो ये करने से आपकी एसिडिटी कभी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद आप चलते हैं कपालभाति के लिए। कपालभाति सेम सिचुएशन में बैठना है आपको। मेरुदंड को सीधा रखते हुए मेरुदंड को आगे से झुकाना है। हाथों पे थोड़ा सा वजन ले लेना है आपको। कंधे आपके थोड़े से स्ट्रांग भी हो जाएंगे और जैसे आप ये पकड़ लेंगे पेट आपका रिलैक्स हो जाएगा। जब ये रिलैक्स हो जाता है तो आपको जैसे कैंडल बुझाते हैं हैप्पी बर्थडे के अंदर, मुंह से ऐसे करते हैं, वही चीज आपको नाक से करनी है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको प्रेशर से, बिल्कुल प्रेशर से आपको सांस को बाहर धकेलना है। अब स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, या तो बैक साइड में दर्द होता है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको सीधे हो जाना है, गहरी सांस लेनी है, पूरक करना है, आंतर कुंभक करना है और धीरे 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 रेचक करना है। जैसे ही आप ये 2-3 आवर्तन करेंगे ये दुखावा आपका बैठ जाएगा। आपको ये कम से कम धीरे 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 बढ़ाते हुए 3000 तक ले जाना है। जैसे ही आप ये 1000-1500 के ऊपर निकलेंगे तो आपको उसकी संपूर्ण असर आनी शुरू हो जाएगी। पूरे बॉडी के सारे तंत्रों पर ये काम करता है। आपका मज्जा तंत्र काम करता है, कंकाल तंत्र पर काम करता है, पाचन तंत्र पर, रुधिराभिसरण तंत्र पर, चेता तंत्रों पर, हर एक तंत्रों पर मजबूताई से ये काम करता है। इसके तो क्या क्या लाभ बताऊं आपको, हर वक्त बताता हूं, फिर भी दिल करता है कि मैं आपको बता ही डालूं। तो गैस, अपचा, एसिडिटी तो कभी नहीं होगी, अल्सर कभी नहीं होगा, बवासीर कभी नहीं होंगे, कभी आपकी कमर दर्द नहीं होगी, आपको ब्लड सर्कुलेशन इतना प्यारा हो जाएगा कि हाथ गर्म रहेंगे हर वक्त, गले की आवाज सुंदर हो जाएगी, आंखें सुंदर होगी, कान सुंदर होंगे, मस्तिष्क सुंदर होगा। थायराइड में, डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, हर एक में इसकी बहुत ही सारे बहुत सटीक जिसको कह सकते हैं हम रिजल्ट मिले हुए हैं। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, पागलपन के हमले और विचार वायु कभी नहीं होगा। इतने सारे फायदे हैं कि जिसको गिनाते गिनाते, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि उपकार किया है ऋषि गणों ने तो ये कपालभाति को खोज के मनुष्य जाति को दिया हुआ है। नेकेड गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे कुछ नहीं पाएंगे। तो अभी काफ़ी दिनों से मेरे पास बहुत सारे जो कह सकते हैं कि फ़ोन्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि प्रमोद जी एसिडिटी बहुत होती है, क्योंकि अक्सर लोग घर में हैं, खाना ज़्यादा खाते रहते हैं और साथ में जो ऑफिस में काम करते हैं, कॉरपोरेट में बैठे हुए हैं, हरदम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, तो उनको ये गैस, अपचाव, एसिडिटी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा ये आपको सजेशन है, यदि बैठ के आप अग्निसार कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। दूसरी, यदि आपको समय है तो सबसे ज़्यादा ये पोर्शन को उतारने के लिए हम चलेंगे दंडासन के लिए। दंड जैसा आसन, जैसे एक लकड़ी है उसको सीधा आप नीचे डाल दिया, बराबर है, और हाथों में रख दिया, तो उसकी जो एक्सरसाइज है जो आपको पूरे एब्डोमेन के स्नायुओं पर काम करती है, उसके बारे में बता रहा हूं।
तो धीरे से लेकर उल्टे सो जाएंगे वक्रासन में। अब आपको अर्धभुजंगासन पहले करना है। अर्धभुजंगासन धीरे 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 आपको ये ऊपर तक जाना है 20 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब पूर्ण भुजंगासन के लिए चलेंगे। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को बगल के नजदीक में रखते हुए पूर्ण भुजंगासन धीरे 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 ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर मकरासन में आ जाएंगे। दंडासन के लिए तैयार करेंगे शरीर को। दंड जैसा आसन। तो आपको दोनों कूनियों को जमीन पर सटाते हुए दोनों पैरों को सीधा करते हुए सीधा दंड की माफिक। देखिए आप दंड, इसमें आपको घुटने नहीं लगाने, पेट को नहीं लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपको एक पैर ऊपर करना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल देंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर आपको ये आगे लाना है नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। पूरे शरीर की जंघा, पिंडिया, लोअर पेन, एसिडिटी, कब्ज, सब उससे राहत मिल जाएंगे। अभी दंडासन के दूसरे प्रयोग से चलेंगे। पूरे दोनों हाथों को दबाते हुए आपको धीरे 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 पैरों को आगे लाना है। 1 पूरा दबाते हुए, 2 3 4 5 6। देखिए आप दोनों हाथ और दोनों पैर पैरेलल आ जाते हैं। 7 8 9 10।
रिलैक्स। हाथ और पैर दोनों मजबूत होंगे। ये दंडासन का दूसरा प्रयोग है। करवट बदलते हुए सीधे बैठेंगे। पैर को ऊपर उठा देंगे। 1 2, यह हाथ आगे भी रख सकते हैं। 3 4 5, वैसे ही आगे 1 2 3 4 5। वैसे ये अभी हमने लेफ्ट साइड किया, अभी सेम राइट साइड से करेंगे। एक 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। शवासन में रिलैक्स करेंगे। गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों को इकट्ठा करते हुए अप, सिर्फ 40 डिग्री अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। गहरी सांस लेते हुए 60 डिग्री अप करेंगे। अभी हम एब्डोमेन पर काम कर रहे हैं, अग्निसार पर काम कर रहे हैं। पेट में कभी भी कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नाइन्टी डिग्री अप करेंगे गहरी सांस लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। प्रयत्न उस दिशा में करेंगे जैसे दोनों हाथों को पीछे से लेके स्लोली स्लोली अप होना है आपको। जितना आपका एब्डोमेन स्ट्रांग होगा इतना आप स्लोली 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 बैठ पाएंगे। ये सिटअप्स आपको 10 से लेकर 20 तक लगाने हैं, ठीक है। देखिए आप स्लोली स्लोली आप बैठिए, स्लोली स्लोली एकदम।
ये अभी आपको अपनी अनुकूलता के अनुसार इसको लगाना है। तो ये आपका डाइजेस्ट प्रक्रिया से शुरू करते हुए पूरा शरीर बहुत ही हल्का फुल्का महसूस होना शुरू हो जाएगा। अभी आपको मैं एक दिल की बात बनाना चाहता हूं, खास बहुत दिल की बात बताना चाहता हूं। यह बात इसलिए मैं करना चाहता हूं कि यह सारा करने के बाद अल्टीमेट करना क्या है। आपको ध्यान में प्रवेश करना है, मगर ध्यान में प्रवेश करने से पहले आपको शायद पता होगा कि अष्टांग योग के अंदर एक चीज और आती है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है? आपकी इंद्रियों को, जो उसका स्वभाव है, साहजिक रूप से जो बाहर जा रही है, उसको रोक के कैसे अंदर मोड़ा जाए। अक्सर मैंने देखा हुआ है कि कोई प्रत्याहार के मामले में कुछ ज्यादा बात नहीं करता, मगर आज मुझे लग रहा है कि आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए मुझे। 1970 से शुरू करते हुए 82 तक हमारे गुरु ने इस प्रत्याहार पर हमारे साथ बहुत ही कड़ाई से, सख्ती से बरतते हुए काम किया था। तो ये प्रत्याहार है क्या? मैं आपको पंचसूत्री कार्यक्रम बताने जा रहा हूं। पंचसूत्री यानी कि 5 सूत्र है उसके, जो सबल होंगे, जो अपने आप तो सक्षम समझते होंगे, जिसको अंदर से एक आग लगी हुई है कि नहीं, कुछ पाके जाना है। ये नहीं कि बस आए, खाया पिया, वंश वृद्धि करी, मकान जमीन मकान बना लिया सब, और अल्टीमेट ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो ये पंचसूत्री कार्यक्रम में ऐसा है कि आपको 5 सूत्र में दूंगा। सबसे पहला जो सूत्र है आपको, वो ये है कि 24 घंटे में जब भी आपको याद आ जाए, मेरी आवाज आपके कान में गूंजे, आपका एक संकल्प अंदर से याद आए कि यह पंचसूत्री कार्यक्रम पर मुझे कुछ काम करना है, तो आप जब भी बैठो, जहां पर भी बैठो, जो भी कार्य करते हो, उसमें आपको पहले तो क्या करना है, गहरी सांस लेनी है। जितनी हो सके पेट भर के, छाती भर के, जितना हो सके इतना खींच के लेनी है, और धीरे 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 उसको बाहर निकाल देनी है। देखो, जीवन का जो साहजिक क्रम है, जिसकी बहुत गहरी छाप अंतर मन के अंदर, अंतर प्रकृति के अंदर पड़ी हुई है, वो सबसे पहली जो आदत है वो श्वसन प्रक्रिया की है। तो उस श्वसन प्रक्रिया पर आपको ध्यान देना है। जब भी चाहे आप सुबह में बिस्तर पर से उठे तो पहली गहरी सांस ले ले, जितनी हो सके ठूस ठूस के अंदर। ये नहीं कि आपने थोड़ा भी उसके अंदर कंजूसई करी, दबा के ली, आराम से धीरे धीरे छोड़ दिया। ये दिन भर में 24 घंटे में जितनी बार ये कर सकते हो करो, होश बुद्धि में कि हाँ, मैंने सांस ली, मैंने सांस को बाहर निकाला। जब आप कोई ऐसा काम करते हो, मान लो को जिसमें आप ये सांस पर ध्यान नहीं रख सकते हो, उस वक्त उसको छोड़ दो, उस वक्त बाह्य कामकाज के अंदर ध्यान दो। तो ये एक पहला सूत्र हो गया। नंबर 2, दूसरा सूत्र है आपका भोजन प्रणाली, क्योंकि जन्म के दूसरे दिन से शुरू होती है ये खाने का। तो खाने के लिए आपको मिनिमम लेवल पर ले आओ अपने आप को। मिनिमम यानी कि आप समझो कि आप ऑन एन एवरेज आप 4 रोटी, सब्जी, दाल और सब कुछ खाते हो, तो उसमें से पहले दिन आप 3 कर दो,
2 कर दो, 1 कर दो। उसके बाद आप हो सके तो देखो, ये अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जा रहा है कि आपको 1 टंक कर दो, उससे बढ़ सकते हो तो आप 24 घंटे में 1 बार करो, उसके बाद 48 घंटे में करो, 36 घंटे में करो, 42 घंटे में करो। वो करना मुश्किल है आपके लिए। मगर आप पहले 2 टाइम जो खाना, 4 टाइम खाना खाते हो उसमें 2 कर दो, 2 में से आप 1 कर दो। 1 में भी क्वांटिटी धीरे 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 बढ़ा दो। ये आपको मैं कम से कम 6-8 महीने का लेसन दे रहा हूं। जो सबड़ होंगे, योग के लिए अपने आप को कुछ करना चाहेंगे, कुछ प्राणा चाहते हैं, क्योंकि ये प्रत्याहार के बाद ही धारणा, ध्यान और समाधि आता है। यदि आप ये प्रत्याहार में नाकाम रहते हैं तो आगे बढ़ना मुश्किल है। तो पंचसूत्री कार्यक्रम आज तक किसी ने शायद दिया होगा, नहीं दिया, आई डोंट नो, मगर मैं आज अपने आत्मीय जन आप लोगों को समझते हुए मैं आपको उजागर कर रहा हूं। तो दूसरा सूत्र है आपका भोजन, उसको कम कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, दिन में हो सके तब तक मौन रखो। मौन यानी कि आप पहले तय करो ऐसा कि भाई मैं सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे बिल्कुल नहीं मौन रहूंगा, फिर दोपहर को 1 से 4 बजे तक मौन रहूंगा, उसके बाद रात को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मौन रहूंगा। जिसको अनुकूल है वो 24 घंटा रख सकते हैं। जो सक्षम है, अपने आप में मजबूताई से अपने आप पर काम कर सकते हैं, वो 3 दिन रख सकते हैं, 7 दिन रख सकते हैं, 15 दिन रख सकते हैं। बिल्कुल मौन, 100% मौन। यदि आपको जरूरत पड़ गई कहीं पर बात करने की तो नके तुके शब्दों में, मान लो कि 2 शब्दों से काम चल जाता है, हाँ इतने कहने से, ना कहने से, तो आगे मत बढ़ो। ये आपका इंद्रियों का प्रति आहार है, प्रत्याहार जिसको बोल सकते हैं। ये है आपका तीसरा मौन। चौथा है, बहुत सोच समझ के ये 5 जो व्रत दे रहा हूं वो यदि आप कर सकते हैं तो ही आगे योग में बढ़ेंगे। चौथा है आपको आंखों पे पट्टी बांध देनी है, होश में रहते हुए मौन, होश में रहते हुए आंखों पे पट्टी। यदि इस कोरोना की महामारी के अंदर ये समय आपको क्वारंटाइन में मिला हुआ है, घर के बाहर नहीं निकलना है, तो आप ये 4 व्रत आराम से कर सकते हैं। मगर इसमें एक बात और है, जो 5वीं बात है, वो जो सारा भी करना है ना आपको, संपूर्ण प्रसन्न चित्त से ही करना है। यदि आप ये 5 महाव्रत, पंचसूत्री कार्यक्रम कर सकते हैं, तो यदि आप उसमें पार्ट भी कर सकते हैं कि भाई एक दिन में मैं इतना ही कर सकता हूं, जो मजबूत है, जो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, जिसको कह सकते हैं हम के दृढ़ मनोबल वाले हैं, हिम्मती है, जिसको कुछ करने की, कर गुजरने की तमन्ना है, वो 3 दिन करें। अपने आप को जब ये 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन करेंगे तो आपकी विचार शक्ति सारी ही चेंज हो जाएगी, 100% चेंज हो जाएगी। आपको लगेगा कि धीरे 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 कैसे ये बिन जरूरी वार्तालाप, बिन जरूरी खाना, बिन जरूरी देखना, तो अंतर जगत का एक जो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया, उसकी अंतर जगत की एक द्वार खुल जाएगा आपका। जैसे ही वो खुलेगा, आप खुद ही अपने आप उसमें जब पाओगे, तो ही ये मैं समझा नहीं पा रहा हूं कि इसके लिए क्या होगा। सबको अपना अपना अनुभव, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी तैयारी
और अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो ये जो पंचसूत्री कार्यक्रम मैं आपको दे रहा हूं, जो भी करेंगे तो पाएंगे कि कुछ नवीनतम आपको मिल रहा है। जैसे मान लो कि आपको हाथ में एक हीरा आ गया, उसकी कीमत सिर्फ जवेरी ही जानता है। वैसे ही जो चीज आपके हाथ में आएगी वो जो ऐसी अनमोल होगी कि आप खुद ही उसकी कीमत करोगे, मगर करना तो आप ही को पड़ेगा। तो मैंने पंचसूत्री कार्यक्रम दिया है आपको। ये अक्सर अपनी प्रत्याहार की पूरी विधि है। ये धीरे 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 मान लो कि आपने समय बढ़ाओगे इसके अंदर। जब भी सांस लेनी है गहरी, स्लोली स्लोली ग्लास को बाहर निकाला, जब भी आपको टाइम मिले ये करते रहना है आपको कंटिन्यूस में। ये जो आपकी नॉर्मल सांस लेने की जो एक रिथमेटिक थी उसको हमने तोड़ रखा है। जब ये तोड़ेंगे तो नई सिस्टम सेट होगी। उसके बाद आपको भोजन प्रणाली में फर्क लाना है। बहुत जैसे जैसे आप ये कम करोगे तो सबसे पहला जो बात आएगी वो ये आएगी आपके साथ कि नींद आपकी कम हो जाएगी और भूख लगनी बढ़ जाएगी। जैसे ही आपने गहरी सांस लेना शुरू किया तो सांस का आपको नींद से सीधा कनेक्शन है। जैसे गहरी सांस लेनी शुरू होगी, प्राणवायु अंदर आता रहेगा, अंदर शरीर के अंदर घुलता रहेगा, आपकी नींद कम हो जाएगी। मगर कम हो जाने के बाद क्या होगा, वो गहरी हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। मान लो कि आप 6 घंटा सोते हैं तो वो 4 घंटे हो जाएगी। यदि आप 8 घंटे सोते हो तो 6 घंटे हो जाएगी, 3 घंटे हो जाएगी। भाई नेपोलियन बोनापार्ट 1 मिनट के अंदर घोड़े पर बैठ के 1 मिनट के अंदर 24 घंटे की नींद लेता था। योगी गण इसलिए तो कहते हैं ना कि कभी सोता नहीं है। तो जैसे जैसे आप ये करेंगे तो मैं आपको एक फलादेश भी देता हूं, इसलिए कि आप करेंगे तो उसके बाद क्या पाएंगे, ये डिफरेंस हो जाएगा आपके अंदर। तो गहरी सांस लेने से नींद कम हो जाएगी, गहरी सांस लेने से भूख बढ़ जाएगी। भूख बढ़ेगी मगर आपको कंट्रोल में खाना है, बहुत खास याद रखना। जब आप कंट्रोल में खाएंगे, बराबर है, मुंह बंद रखेंगे, आंखों पर पट्टी बांधेंगे, तो गुस्सा भी आएगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रसन्न चित्त से ही करनी है। जो आप यदि प्रसन्न चित्त से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसको थोड़ा सा साइड में रख लेना। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये पंचसूत्री कार्यक्रम पर आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो जितना हिम्मती है, जितना जिसको अपने आप को मनुष्य कहने के लिए तैयार है वो करेंगे। तो आज बहुत दिल से ये चीज निकली हुई है, क्योंकि दुनिया में आज तक बहुत जब तक गुरु के कितने पैर दबाने के बाद धीरे 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 आगे बढ़ाते हैं ये। तो मैं मानता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी तो आप करेंगे और उसके फल आप पाएंगे। आपने बहुत धैर्य से, शांति से मुझे सुना, उसके लिए मैं वाकई अनुग्रहित हूं आपसे। उन गुरुओं का धन्यवाद कर देंगे, गुरु मंडल से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे जिन्होंने आज हमारे तक योग की सारी विद्याएं हमारे तक पहुंचाई हुई है। प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना करते हुए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका दिन मंगलमय हो,
आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और औरों को भी इसका लाभ प्रदान करना। जय श्री कृष्ण।